ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کینسر کے حوالے سے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ظاہر بات ہے کہ ہم انسان ہیں اور ان تمام فیکٹرز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کہ ان تمام عوامل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں جو کہ ہمیں کینسر کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور خصوصاً ہمارے ملک میں جس طرح سے تمباکو نوشی، شیشے کا استعمال اور سگار، یہ تمام چیزیں ہیں جس طرح سے استعمال ہوتی ہیں، تو مردوں میں سب سے زیادہ جو جن کو کینسر ہے تو ان کی ڈیتھ کے ریزن لنگ کینسر ہے۔ تو آج لنگ کینسر کے والے سے بات کر رہے ہیں۔ جن ویورس نے ابھی جوائن کیا ان کو بتاتا چلوں، ڈاکٹر جاوید خان صاحب، پروفیسر آف میڈیسن اینڈ کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور کالر ہیں، آپ کی اجازت ہے ہم کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے؟ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ؟ کیسے؟ رابعہ بول رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی، ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ میں نے اس سے یہ پوچھنا تھا کہ ہماری فیملی میں خاص طور پہ میرا بھائی اور یہ لائک اسموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ کچھ ایسا ٹیسٹ وغیرہ بتائیں جو پھیپھڑوں سے ریلیٹڈ ہو، پتہ بندہ ٹیسٹ وغیرہ کروا لے اپنے پھیپھڑوں کے لیے۔ بالکل صحیح، اور ایک بالکل اور صحیح بات پوچھنی تھی، وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، ہڈیوں کے اوپر کب کریں گے؟ ہڈیوں میں کیا کام کروانا ہے آپ نے بتائیے؟ ہڈیوں میں ہم لائک بہنوں کو یہ پرابلم ہے، خاص طور پہ نماز کے ٹائم جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں سجدے میں، ایسے اٹھو بیٹھو تو اس میں لائک پٹاخے جیسے نکلتے ہیں گھٹنوں میں سے۔ ہاں جی، اب پورے جوائنٹس میں سے آواز آتی ہے۔ جوائنٹ میں سے آواز آتی ہے، اوکے۔ آپ کی عمر پوچھ سکتا ہوں؟ میری عمر 23۔ 23۔ اچھا، ایک کام کر لیتے ہیں کہ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں ہڈیوں میں اور ہڈیوں کی کمزوری پہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اگلے ہفتے اس پہ ایک کسی اچھے سے آرتھوپیڈک سرجن کو یا روماٹولوجسٹ کو بلاتے ہیں اور ہڈیوں کی صحت کے حوالے سے اور ہڈیوں میں سے جو آوازیں آتی ہیں اس کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کے ٹیسٹ کا بھی پھیپھڑوں کا بھی بتا دیجیے۔ پھیپھڑوں کا تو ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہے آج، اسی لیے اچھا دیکھیے، بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑا اہم جو سوال کیا کہ ان کے بھائی جو ہے سگریٹ بہت پیتے ہیں، کیا کوئی ایسا ٹیسٹ ہے؟ انفارچونیٹلی جو سگریٹ سے جو ڈیمیج ہوتا ہے اس کا جو ہے بہت لیٹ پتہ چلتا ہے۔ کوئی بھی ایسا ٹیسٹ اس وقت اویلیبل نہیں ہے جو کہ ارلی سٹیج پہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کے پھیپھڑے کتنے ڈیمیج ہو گئے ہیں۔ تو جب 60 سے 70% پھیپھڑے ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کو پھر ٹیسٹ کے اندر پتہ چلتے ہیں، یعنی پیک فلو میٹر کے ذریعے یا اسپائرومیٹری کے ذریعے، ایون چیسٹ ایکس رے میں بھی ایبسولوٹلی نارمل، یعنی لنگ آپ کے بے شک ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے اس کے اندر ایکس رے میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نارمل ہے، لیکن آپ جب ان کے ٹیسٹ کرتے ہیں، اسپائرومیٹری کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے جناب ان کے لنگ فنکشنز تو بالکل ہی صرف 30% رہ گئے۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ میں آؤں گا، کیونکہ ڈائگنوسس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ نے جو عوامل بتائے ہیں، تمباکو نوشی، ٹھیک ہے، سگریٹ اسموکنگ، چاہے وہ ایکٹیولی ہو چاہے کوئی کر رہا ہو اور آپ اس میں ایکسپوز ہو رہے ہوں، یہ بتائیے سگریٹ اسموکرز جو ہیں ان میں اندر ایک بڑی پرابلم ہے، ڈھٹائی آ جاتی ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو اسموکنگ نہیں کرتے کیا ساری زندگی زندہ رہتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، اس وقت پاکستان میں ہر سال 1 لاکھ افراد صرف تمباکو کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر دنیا میں دیکھیں 54 لاکھ افراد سالانہ موت کا شکار ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں ایک مسکنسیپشن ہے، جناب موت کا ایک دن مقرر ہے تو میں جو بھی کروں کافی ہے۔ اگر یہ منطق مان لیا جائے تو دنیا کا ہر غلط کام پھر تو ایکسیپٹ ہونا چاہیے۔ آپ ہیروئن بھی پیجئے، آپ چرس بھی پیجئے، آپ کیا کہتے ہیں الکوہل بھی پیجئے، اور پھر کہیے موت کا ایک دن تو مقرر ہے۔ تو آپ تو کسی ٹرک کے سامنے آ کے ویسے ہی کھڑے ہو جائیں۔ یہ تو میں کہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، انسان سوچے کیا کام کر رہا ہے۔ تمباکو کے بارے میں جتنی ریسرچ ہوئی ہے، اپ ٹو 70,000 آرٹیکل انٹرنیشنل جرنلز میں چھپ چکے ہیں تمباکو کے نقصانات کے بارے میں، یعنی 54 لاکھ افراد سالانہ دنیا میں اس کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ پھر بھی کوئی کہتا ہے کہ جناب اس سے نقصان نہیں ہوتا، تو یہ بالکل احمقوں کی جنت میں رہتا ہے وہ شخص۔ اچھا یہ بتائیے کتنی سگریٹ پینے سے یا کتنے دنوں تک سگریٹ پینے سے انسان کینسر کی طرف جا سکتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک کال لیتا ہوں، یہ سوال میں نے آپ کو دے دیا تاکہ کال کے بعد یہ سوال کا جواب دیجیے گا۔ شجاع صاحب ہیں ایبٹ آباد سے۔ السلام علیکم شجاع صاحب۔ السلام علیکم، مائی نیم از فدا، FIDA فدا۔ جی میرا نام فدا ہے، FIDA فدا۔ اچھا جناب، معذرت، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا فضل، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ جناب۔ آپ کی ہوسٹنگ، آپ کی جو اتنے اچھے انداز سے ہیومینٹی کی خدمت کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ مختلف مہمانوں کو لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں، میرے بھی آپ پہ اور تمام جو لوگ میرے ویورز ہیں اور سب لوگوں کو میں بتاتا بھی ہوں آن ورڈز کہ اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی صحت کے ساتھ دے، اور ہیلتھ ٹی وی کا بھی بہت بڑا شکریہ، بہت شکریہ، کیونکہ انسان کی بیسک نیڈ آکسیجن، صاف پانی کے بعد فوڈ ہے اور ہیلتھ ہے۔ تو ہیلتھ
की टीवी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। मैं कभी कभी मॉर्निंग शो में गुड हेल्दी मॉर्निंग में डॉक्टर राफिया को भी फ़ोन पे कभी कभी मिलता है टाइम, लेकिन आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम मैंने कॉल की है। बहुत शुक्रिया जनाब। एक तो बहुत अच्छी बात आपने की, और मैं भी आई वांट टू ऐड वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो लोग स्मोकर हैं उनको मैं बताता हूँ भाई कि पहले तो ये आप इसको ना पिए, आपके अपना नुकसान है, और सेकेंडली अगर आप ये एडिक्शन है या ये नशा आपने किया है तो इसका धुआं अपने पास रखो। आप रूम में फैला रहे हो या एनवायरनमेंट में फैला रहे हो तो उस वजह से और लोग भी आपकी वजह से सिगरेट पी रहे हैं जो नहीं पीना चाह रहे। बेशक। तो ये एक अखलाकी अंदाज से अगर हम सब में इतनी अखलाकी बोल्डनेस हो तो वाई वी शुड नॉट टोल्ड दो स्मोकर पीपल, हमारे भाई हैं, कि आप पहले तो इसको छोड़ ही दें। अगर आप पीते हैं तो धुआं अपने, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात की है, रखो, एक्सेल मत करो उसको। बिल्कुल आपने अच्छी बात की। एक मैं आपसे एक बात पूछूंगा, कोई सवाल पूछना चाहेंगे इससे रिलेटेड? हाँ, तो सवाल एक बहुत अच्छा जो इम्पोर्टेंट था, एक तो डॉक्टर जावेद साहब बड़े आसान अल्फाज में बता रहे हैं लंग्स के हवाले से। एक मेरा सवाल ये है कि अगर इन्होंने एक स्टार्ट में ये कहा था कि 90% प्रिवेंटेबल है, कैंसर के चांसेस नहीं होती, तो वो रेमेडी जरूर बताइएगा, ठीक है, ये भूल न जाएं। और एक सवाल ये है कि एक मेरा दोस्त था, वो स्मोकर था, अब उसको ब्रोंकिटाइटिस हो गया है, लेकिन थ्रू एक्सरसाइज उसने काफी अपने आप को रिकवर किया है। ही इज नॉट नाउ स्मोकर। तो क्या उसकी फर्दर रिकवरी अच्छी हो सकती है, और क्या ही माइट लीड्स टू कैंसर और नॉट? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तारीफी कलमात का और आपके बहुत ही अच्छे सवालात का। डॉक्टर साहब ये बताइए, ब्रेक के जाने से पहले, कॉल लेने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि एक आदमी, अब आज जो जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 6 महीने पहले स्मोकिंग शुरू की है, जिन्होंने हो सकता है 5 साल से स्मोकिंग कर रहे हो, कोई 20 साल से कर रहा हो। एवरेज के स्टडीज़ हैं कि कितने दिन और कितने सिगरेट स्मोकिंग के बाद आपके चांसेस बढ़ जाते हैं? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है, ये डिसाइड करती है इंसान की जीन। इस वक्त कोई ऐसा टेस्ट अवेलेबल नहीं है जो बता सके कि आपकी जीन्स के अंदर क्या फैक्टर्स हैं। कि कुछ हमने मरीज़ देखे हैं जो कि विद इन 10 years ऑफ स्मोकिंग दे डेवलप कैंसर, और कुछ ऐसे हैं जो कि 80 साल तक सिगरेट पीते रहे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये कि देयर इज़ नथिंग लाइक सेफ यूज़ ऑफ सिगरेट। यू नो, सिगरेट कुछ ना कुछ डैमेज आपके जिस्म में करती रहेगी। अगर कैंसर नहीं करेगी, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा, वरना क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, वरना बात ये फालिज हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। तो सिर्फ सिगरेट की हम बात नहीं कर रहे, किसी भी फॉर्म ऑफ तंबाकू, यू नो, अगर आप स्मोकलेस टोबैको जो इस्तेमाल कर रहे हैं या गुटखे की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं या पान की, तो उसमें भी लंग कैंसर होने का खतरा, उसमें भी हार्ट अटैक का खतरा, उसमें जो सबसे बड़ा खतरा बढ़ जाएगा वो है माउथ कैंसर का। अगर आप स्मोकलेस टोबैको जैसे कह रहे हैं, जैसे हमने कहा मुंह से जो हम खाते हैं जिनको तंबाकू, तो वो भी हमारे मुल्क में बड़ा कॉमन है। अगर इस वक्त देखें कि दुनिया के अंदर, चूँकि इंटरनेशनल कैंसर डे अभी आने वाला है, उसके हिसाब से बताऊँ कि इस वक्त नंबर 2 पे जो पाकिस्तान में कैंसर है वो माउथ कैंसर है। ये भी टोबैको रिलेटेड है। वो गुटका, छालिया, सुपारी, पान मसाला, आप देखिए दुनिया के हर पैकेट पाकिस्तान में अवेलेबल है। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मतलब पढ़ के इतने बड़े हो गए, पाकिस्तान बने हुए भी 63 साल हो रहे हैं, ये जो जितने हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स एसोसिएशंस हैं, सब कुछ हैं, वो बोलती रहती हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं, लेकिन इन पर पाबंदी क्यों नहीं लगती है? देखिए, पाबंदी अगर लगती भी है तो अमल दरामद नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैं सिंध की एग्जांपल दूंगा। सिंध के अंदर गुटखा की सेल के ऊपर 5 बार पाबंदी लगी है पिछले 4 सालों में, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। अभी भी आप किसी पान की दुकान में चले जाएं, अरे यहाँ इतने से मिल जाता है। इस मुल्क में इतने डॉक्टर नहीं है जितने यहाँ पे पान की दुकान है। बिल्कुल, आप देखिए सिंध असेंबली ने करारदाद पास की शीशा की मई 2011 में। अभी भी आप जाके देख लिए, सिंध अकॉर्डिंग टू सिंध असेंबली रेजोल्यूशन, शीशा सर्व करना सिंध के रेस्टोरेंट के अंदर बैंड है। लेकिन आप चले जाइए किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, ये दबदब शीशा इस्तेमाल कर रहे हैं नौजवान। एक एमपी को हमने देखा, वो भी शीशा पी रहे थे और करारदाद तो पेश हो गई, ठीक है ना। डॉक्टर साहब, मक्का मुकर्रमा से कॉल है जी, और अमीर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब। वालेकुम सलाम जनाब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम यहाँ सुन रहे हैं, हरम के बिल्कुल नजदीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा सवाल यही है कि मेरा वाइफ जो है, उनका दिल का बीमारी, तो ये दिल का धड़कन ज्यादा है। डॉक्टरों में लेके गए हैं और ये डॉक्टर ने कहा कि चाय ज्यादा नहीं पीना है, और डॉक्टर जावेद साहब से यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि इसका क्या परहेज करना है और इसका क्या हल और क्या बीमारी, इसके इलाज क्या है? ठीक है, उनकी दिल की धड़कन ज्यादा है वाइफ की। हाँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, दिल की धड़कन जो बढ़ने की कई वजूहत होती है, उसमें से एक सबसे जो कॉमन वजह है वो एंग्जाइटी,
अगर साइकोलॉजिकली वो शख्स डिस्टर्ब्ड है तो दिल की रफ्तार तेज़ होगी। और कुछ कॉमन सेंस हैं, जैसे सिगरेट अगर आप पीते हैं उससे भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जो लोग ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी धड़कन बढ़ जाती है, और कुछ ऐसी हार्ट की बीमारियां भी हैं जो इलेक्ट्रिकल एक्सेस उसमें जो है प्रॉब्लम होता है, तो उसके अंदर सडनली एकदम से हार्ट रेट तेज़ हो जाता है। तो एक माहिर अमराज दिल जो है डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट है, किसी फिजिशियन से पहले एक मुआयना करवा लें। हाँ, एक फॉर एग्जांपल एक थायराइड, किसी का अगर थायराइड ग्लैंड सही काम नहीं कर रहा तो उसमें भी जो पल्स रेट बढ़ सकती है, तो एक फिजिशियन के पास जाके सही मुआयना करा लिया जाए तो इंशाल्लाह ये मसला बड़ा सीरियस नहीं है, इंशाल्लाह काबू में आ जाता है। बेसिकली मैं तमाम लोगों से, आप माशाल्लाह नाम के भी अमीर हैं, अल्लाह ताला आपको इखलाक का, अल्लाह ताला आपको हर तरह से अमीर करे, कि जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उन सबसे गुजारिश करूँगा कि एक फैमिली फिजिशियन से एक रिश्ता कायम कर लीजिए, क्योंकि हर बीमारी के बहुत सारे अवामिल होते हैं और डायरेक्टली अगर आपको किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास भेजें उससे बेहतर ये है कि उसके रीज़न को डायग्नोस किया जाए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो एक फिजिशियन से मुआयना करवा लीजिए। उम्मीद ये है कि हो सकता है कि कोई मामूली सा सबब हो सकता है, कोई घबराहट है उन्हें, घर में कोई और वजह हो जिसका से टेंशन में हो। एनीवेज एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिरा साहिबा जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, मिजाज ठीक हैं? जी हाँ, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आज बड़ा टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है वैसे, फिर वही कैंसर। आई नो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं पूछा भी जैसे ये कह रहे थे चाय और कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करने से भी क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं क्या कैंसर के? और ग्रीन टी पीने से तो नहीं होंगे डॉक्टर साहब, क्या ख्याल है आपके? अच्छा, मैं घबराहट का कहा था डॉक्टर साहब ने, लेकिन आपने अच्छा सवाल पूछ लिया कि चाय कॉफी पीने से भी कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता, और ग्रीन टी का भी। मतलब एक बात तो है, जिसको अल्लाह बचाना चाहे उसको डॉक्टर या कुछ कोई क्या कर सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा, चेन स्मोकर्स को, इतने स्मोक करते हैं, इतने चाय पीते हैं, माशाल्लाह दे फाइन, कुछ भी नहीं है उनको। तो मैं तो एक कंक्लूजन तो ये हूं डॉक्टर, अभी आपको फाइन लग रहे हो, अभी आपको फाइन लग रहे हो, लेकिन आपको क्या पता कि उनके दिल के या उनके जिस्म के अंदर क्या क्या तोड़ फोड़ हो चुकी होगी। देखिए ये बात ये है कि डॉक्टर साहब एक काम करते हैं, तफसीली जवाब देंगे। और कोई सवाल आपने पूछना है तारा साहिबा? नहीं बस डॉक्टर, मैं बस ये पूछना है, अभी चाय कॉफी का ये कह रहे हैं और घबराहट का कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भाई जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं उनका जो है ना ये, लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा जो है ना, और फिर ये कि डॉक्टर साहब लोगों से कहें कि भाई ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में बैठ जाते हैं, जो लोग बेचारे अपॉइंटमेंट चाहते हैं इनसे तो अपॉइंटमेंट मिलते नहीं है। ऐसे कई डॉक्टर्स है कि महीने बाद अपॉइंटमेंट मिलते हैं, जो मरीज बेचारे जिसको दिखाना हो तो वो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन इनके अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं, फीस देने के लिए भी तैयार होते हैं लेकिन अपॉइंटमेंट इनके पास से मिलते नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल हूँ, मैं कितने हॉस्पिटल्स गई हूँ, कितने डॉक्टर्स के पास मैं गई हूँ, मैं जानती हूँ। एक सिर्फ रिपोर्ट दिखाने के लिए इट टुक मी 1.5 months सिर्फ जाके डॉक्टर को दिखाने के लिए, रिपोर्ट दिखाने के लिए। आप अपने हस्बैंड के हवाले से बात कर रही हैं? जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो तो मैं एक एक्सपीरियंस को तो मैं भूल ही नहीं सकती हूँ कि मैं कहाँ नहीं गई हूँ, लेकिन ये कि बस क्या बताएं। ठीक है, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल मुझे अंदाजा है, आप पहले शेयर कर चुकी हैं। तारा साहिबा बहुत शुक्रिया, दुखी दिल है तारा साहिबा का, बस अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मज़ीद बातें करेंगे और बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं तारा साहिबा के भी, आप लोगों की मज़ीद कॉल भी लेंगे, डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, लेकिन वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।